हेलो स्टूडेंट्स, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नो लास्ट वीडियो में, इन माय लास्ट वीडियो दैट इज रिलेटेड टू प्लेटो, in the introduction of Plato part 1, we discussed about the introduction of Plato, that was the beginning of Plato's philosophy, and I also discussed that how Plato was influenced by his guru, that is Socrates, and what was the issue related to Socrates, why Socrates was poisoned. Also I discussed that what was the situation of Athens where Plato was born, and actually Plato wanted to pursue his career in politics, but due to certain reasons or due to certain grounds, just like for example poisoning of the Socrates, as well as the defeat of the Athens, as you all know that I have discussed, I already told you. Once again I am revising that whole topic, that during ancient Greece, if you look at the picture of the ancient Greece, you will find that there was no concept of the nation state just like the modern time. So in the ancient Greece there was the concept of city state. Each city was a state, that means was having the government, having the population, having the sovereignty. And like for example Athens was a state, Sparta was a state, and Plato was belonging to Athens. So there was a war between the Athens and the Sparta, and finally Athens got defeated. Now this hurt Plato a lot because Plato was highly a nationalized person, highly a patriotic person. So he was under a depression type. He got under a depression, and he was highly you can say that he was highly influenced, or rather you can say that he was highly hurt by the defeat of the Athens by the Sparta. And the second reason that why Plato was so hurt was the poisoning of his guru, that is Socrates. So Plato was finally finding out the solution, that what was the reason that why Athens could not win, why Athens was defeated. Now what was the plus points with Sparta and what were these negative points with Athens. In that way he concluded that because the ruling authority of the Athens was highly corrupt and they were not aware of the good life, and since they were highly corrupt, they were practicing unethical means, so therefore the whole Athens was highly corrupt, and that's why Athens got defeated. Now that's why he is giving the solution. Now in his book Republic, he is altogether giving the solution that how we can make Athens an ideal state, how we can make Athens a great state. Now in that sequence, he is basically focusing on certain principles, on certain philosophies, and in those philosophies the first is to have a philosopher king. Now his guru, that is Socrates, as you all know that Plato was highly influenced by his guru Socrates or the Socrates. So Socrates was of the view that one should know that what is the exact purpose of the life. Means the purpose of the life is not just to live. So the purpose of the life is to find out what is a good life, and a person must have the knowledge so that he can differentiate between what is good life and what is bad life, and a person should live a good life. So what is the meaning of a good life? So good life means to have a virtuous life, to have a life full of happiness, to have a life full of satisfaction. So a person should have a life where he is very happy, and happy gives you satisfaction, and happiness comes with the knowledge. So as you attain knowledge, as you are gaining knowledge, you are becoming aware, and when you are aware, you know, you come to know that what is the meaning of the good life, or what are the means to attain good life. So all the qualities, all the best qualities will give you good life, or all the good qualities will give you good life. So good qualities means what? So good qualities means honesty, good qualities means not to do corruption, to be polite, to be kind, to be human. Now these types of
qualities a person must attain, and these virtues will give you a virtuous life. But all these qualities will come through knowledge. Knowledge will give you excellence, and when you are knowledgeable, then you will lead a virtuous life, and then you will have happiness. Now, since the leaders of the Athens were not virtuous, they were not having virtuous life, they were not having virtues, so they were highly corrupt, they were highly unethical, and therefore Athens lost that battle. So this was the basic crux of my last class. Now today, in that sequence, this is my second part on Plato. Now here I will discuss again one view or the one idea, and that idea will be in a form of question that was asked in last year UPSC paper. Now that idea or that quotation or that question is knowledge is virtue. Now this question has been asked in your UPSC exam. Now how to attain or how to attempt this question, how to deal with this question, what will be the answer format, or what is the meaning of this line. So let us begin this session, but before that there is an information to be made from my side that, my dear friends, my students, I am starting or I am beginning my new PSIR optional batch from the 20th August 2025, and for that I am opening a workshop, and you are free. You can join that workshop both online offline mode on 18th August 2025. So I am organizing a workshop on 18th August. So you all are invited, and from 20th August there will be a new batch of the optional PSIR optional. So let us begin this session. Now this is the quotation. Actually this quotation is of Socrates. जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि प्लेटो जो है वो सोक्रेटिस से, अपने गुरु से बहुत ही प्रभावित थे, बहुत इन्फ्लुएंस है। तो सुकरात का मानना था कि नॉलेज जो है वो बहुत जरूरी है, नॉलेज से ही सब कुछ आता है। आज भी हम लोग कहते हैं ज्ञान जरूरी, बट ज्ञान का मतलब यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स जान लेना नहीं है। यहां ज्ञान का मतलब है ये जानना सत्य क्या है, सही ज्ञान क्या होता है। जैसे महात्मा या संत महापुरुष लोग जो जिस ज्ञान की बात करते हैं, जो ज्ञान भगवान बुद्ध ने देने की कोशिश की, उस ज्ञान की बात है कि असली मकसद जीवन का क्या है। तो असली मकसद जीवन का खाली मकान बनवा लेना, घर बनवा लेना, एक नौकरी कर लेना नहीं है। दिस इज नॉट द मेन पर्पस ऑफ द लाइफ। द मेन पर्पस ऑफ द लाइफ इज टू लिव हैप्पी, टू लिव हैप्पीली, ओके, टू अटेन हैप्पीनेस। आप खुश रहिए, और आप खुश कैसे रहेंगे? जब आप सेटिस्फाई रहेंगे। सेटिस्फाई आप तब रहेंगे जब आपको ये पता हो कि सत्य क्या है, सत्य ज्ञान क्या है। और खुशी जो है आपको गाड़ी, बंगले, कार से नहीं मिलेगी। मतलब आपने कार खरीद लिया, आपने मकान बनवा लिया, 2-3 दिन बड़ा क्रेज रहता है कार का या गाड़ी का, बड़ा आदमी उसको पोंछता पाछता है, पॉलिश वॉलिश लगाता है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी कि फॉर ग्रांटेड आदमी उस गाड़ी को ले लेता है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। दैट मीन्स कि कार खरीद लेना, गाड़ी खरीद लेना, बंगला बनवा लेना, एसी खरीद लेना, ये आपको जो है इनर हैप्पीनेस नहीं देते। ये आपको एक तरीके से प्लेजर देते हैं कि ठीक है, हाँ चलो ठीक है, लाइफ जो है हमारी थोड़ी इजी हो गई, तो मैं थोड़ा सा सुखी हो गया, ओके। फॉर द टाइम बीइंग आप खुश हो जाएंगे, लेकिन आप लॉन्ग टाइम के लिए आप खुश नहीं रहेंगे। तो लॉन्ग टाइम की खुशी आपको कब मिलेगी? जैसे आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, पापा मम्मी से आप मिले, भाई बहन से मिलते हैं, तो आप अंदर से खुश होते हैं, अंदर से एक इनर हैप्पीनेस आती है। ये हैप्पीनेस आपकी नॉलेज से आएगी। तो सुकरात जो गुरु थे प्लेटो के, वो ये मानते थे कि देखो नॉलेज जो है ना वही सद्गुण है। नॉलेज इज वर्च्यू का मतलब नॉलेज, ज्ञान सद्गुण है, मतलब सद्गुण मतलब एक अच्छी क्वालिटी है। तो और इसी को रिवर्स कर दीजिए, वर्च्यू इज नॉलेज और नॉलेज इज वर्च्यू। इस तरीके से यूपीएससी में क्वेश्चन आता है। दिस वाज अ क्वेश्चन, ओके। अब इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे? तो दरअसल ये जो कोटेशन है ये सोक्रेटिस का है, एंड दिस एक्सप्लेन्स गुड लाइफ, कि हाँ एक अच्छा जीवन, गुड लाइफ क्या है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड लाइफ? एज आई टोल्ड यू दैट गुड लाइफ मीन्स अ हैप्पी लाइफ, अ सेटिस्फाइड लाइफ। एक खुश रहना, एक संतुष्ट रहना, ओके, कि हाँ आप खुश भी हैं और संतुष्ट भी हैं। एंड द नॉलेज इज द सोर्स ऑफ गुड लाइफ। जो अच्छी लाइफ है उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स है नॉलेज। और थ्रू नॉलेज, ज्ञान के ही थ्रू आप
वर्च्यूज अटेन कर सकते हैं, आप अच्छी क्वालिटीज अटेन कर सकते हैं। इट मीन्स दैट नॉलेज इज अ सोर्स ऑफ एक्सीलेंस एंड दैट गिव्स हैप्पीनेस। और जब आपके पास ज्ञान आएगा तभी आप जो है वो एक्सीलेंस अटेन करेंगे या आप हैप्पीनेस अटेन करेंगे। तो अच्छा जीवन जीने के लिए आपका खुश रहना बहुत जरूरी है। अगर आप खुश नहीं रहेंगे, सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, तो अच्छा जीवन आप जी नहीं सकते। और खुश और हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन कैसे आएगा? वो नॉलेज से आएगा। जैसे एक डॉक्टर जब अपने पेशेंट को ट्रीट कर लेता है तो उसको इनरली बहुत खुशी मिलती, दैट यस, बहुत एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन मिलता है। जैसे किसी स्टूडेंट का मेरे जब सिलेक्शन हो जाता है और जब वो आता है और कहता है नहीं सर आपने मुझे गाइड किया, नो दैट गिव्स अ ह्यूज सेटिस्फैक्शन कि हाँ चलिए मैंने कोई बहुत कंस्ट्रक्टिव या पॉजिटिव काम किया। तो एक डॉक्टर अगर अपने पेशेंट को कंप्लीटली ट्रीट कर लेता है तो वो जो खुश होता है वो उसकी खुशी, वो उसका सेटिस्फैक्शन होता है। लेकिन ये खुशी सेटिस्फैक्शन तब आएगा जब डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट कर पाएगा। और डॉक्टर पेशेंट को तब ट्रीट कर पाएगा जब डॉक्टर काबिल होगा, जब डॉक्टर ने नॉलेज अटेन कर ली होगी, जब डॉक्टर के पास ज्ञान होगा। इसी तरीके से प्लेटो भी मानते हैं कि नहीं, जो सोक्रेटिस कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्लेटो ने भी इसी बात को अपने थ्योरी ऑफ आइडियाज में दिया। जब प्लेटो विचारों का सिद्धांत देते हैं, आइडियाज का, तो प्लेटो कहते हैं आइडिया क्या है, विचार क्या होते हैं, आइडियाज क्या होते हैं। तो इनका जो प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ आइडिया है वो सोक्रेटिस के थ्योरी ऑफ नॉलेज पर ही बेस्ड है। अब यहां पर आइडियाज का मतलब यह हो गया कि अगर आपके पास नॉलेज होगी, क्योंकि यही नॉलेज एथेंस में नहीं थी, यही लोगों के पास ज्ञान नहीं था, इसी वजह से वहां जो रूलर्स थे वो करप्ट थे, और इसी वजह से एथेंस जो है वो पावरफुल स्टेट नहीं बन पाया, सिटी स्टेट नहीं बन पाया और स्पार्टा को हरा नहीं पाया। और अगर एथेंस को एक पावरफुल सिटी स्टेट बनना है तो एक नॉलेजेबल पर्सन को रूलर होना चाहिए, और वही नॉलेजेबल पर्सन प्लेटो की नजर में फिलोसोफर किंग है। क्योंकि एक दार्शनिक राजा, एक फिलोसोफर किंग जो होगा वो नॉलेजेबल होगा, उसको पता होगा कि हमें किस चीज को कैसे डील करनी है, क्या सही है क्या गलत है। तो फिलोसोफर किंग की वो वकालत करते हैं, कहते हैं फिलोसोफर किंग में अच्छे गुण होंगे, अच्छी क्वालिटीज होंगी, और उसके में वो वर्च्यूज होंगे। और अच्छी क्वालिटीज कैसे आएंगी? क्योंकि फिलोसोफर किंग नॉलेजेबल होगा। तो नॉलेज इज वर्च्यू और वर्च्यू इज नॉलेज। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब अगर आगे देखें हम कि प्लेटो ने कैसे थ्योरी ऑफ नॉलेज या थ्योरी ऑफ आइडियाज को उन्होंने दिया, कैसे उन्होंने प्रोपाउंड किया कि प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडियाज क्या है। तो यहां पर भी एक बड़ा फेमस प्लेटो का कोटेशन निकल के आता है, रियलिटी इज शैडो ऑफ आइडियाज। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, दिस वाज आल्सो अ क्वेश्चन। ऐसे ही सब कोटेशन क्वेश्चन में आ जाते हैं। कमेंट, रियलिटी इज शैडो ऑफ आइडियाज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियलिटी इज शैडो ऑफ आइडिया? रियलिटी इज शैडो ऑफ आइडिया का मतलब होता है कि जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है ना, जिसको आप सच समझ रहे हैं, दरअसल वो सच नहीं है, वो आपके विचारों का ही एक प्रतिबिंब है, एक रिफ्लेक्शन, एक शैडो है। तो आप जैसा देख रहे हैं, आप जैसा महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, आपको वैसा ही सब कुछ दिखता है। क्लियर? कहते हैं कि सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है, उसी तरीके से। अब प्लेटो इसको आगे कैसे समझाते हैं? तो प्लेटो कहते हैं देखिए रियलिटी दो तरह की होती है, वास्तविकता। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियलिटी, वन इज द फिजिकल एंड सेकेंड इज आइडियाज। फिजिकल वो रियलिटी है जो एक आम इंसान को अट्रैक्ट करती है, जो हमें चकाचौंध दिखता है, जिसके पीछे आम इंसान भागता है। अब वो किसके पीछे भागता है? भौतिकतावाद के पीछे, मैटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे, मैटीरियलिज्म के पीछे। जैसे मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, सोना, चांदी, ये क्या है? ये सब मैटीरियलिस्टिक चीजें हैं। ये आपको इनर हैप्पीनेस नहीं देंगी, लेकिन इंसान को यही सब चाहिए। जो संत महात्मा होते हैं, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, देखिए मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया
कि भगवान बुद्ध तो अपना पूरा राजपाट छोड़ के चले गए। समझ रहे हैं आप? तो अल्टीमेटली किसकी खोज में गए थे? कहते हैं सत्य की खोज में। तो सत्य की खोज वो भी कर रहे थे, सत्य की खोज यहां पे भी हो रही है। तो प्लेटो कह रहा है देखो ऐसा है, जो फिजिकल चीजें हैं ना, ये सब शॉर्ट स्पैन के लिए होती हैं, कि तुमने गाड़ी खरीद ली, तुमने मकान बनवा लिया, तो तुम्हें कुछ समय के लिए ये खुशी देंगे, लेकिन जो आइडियाज हैं ये परमानेंट रहते हैं, यही आपके साथ लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं। तो आइडियाज क्या हैं फिर? आइडियाज जैसे मतलब ईश्वर, गॉड, जैसे सोल, आइडलिस्ट मतलब परमात्मा। तो आत्मा और परमात्मा, आत्मा आपकी खुश होगी जब परमात्मा से वो मिलेगी। ईश्वर की प्राप्ति, द अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ इज टू अटेन गॉड। यह हर धर्म में कहा गया है कि ईश्वर से आपका मिलन। तो पुराने जमाने आप देखें माइथोलॉजिकल स्टोरीज, तो जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो सालों साल जो है वो बैठ के तपस्या करते थे। तो भगवान ब्रह्मा ने दर्शन दिए, भगवान शिव ने दर्शन दिए, भगवान विष्णु ने दर्शन दिए, तो कहते थे मेरा जीवन सफल हो गया। तो ये जो आपके सामने लाखों अरबों रुपए का कुबेर आ जाए, मकान बनवा लीजिए, गाड़ी बनवा लीजिए, कहते हैं ना सब यहीं का यहीं रह जाएगा, ऊपर कुछ लेके नहीं जाओगे, सिर्फ एक चीज ही लेके जाओगे, वो है आपके गुण। तो आप अच्छा व्यवहार करिए समाज में, आप लोगों के साथ अच्छे से मिलिए। सो दोस क्वालिटीज विल बी रिमेंबर्ड इन सोसाइटी व्हेन यू आर नॉट इन सोसाइटी। बाकी सबका क्या है? बाकी सब तो यही है। आप देखिए इंडियन सोसाइटी में भी कहा जाता है पैसा क्या है? पैसा तो हाथ की मैल है, सब यहीं रह जाना है, कुछ लेके नहीं जाना। यही बात प्लेटो भी कह रहे दिस इज नॉट द रियलिटी, दिस इज द रियलिटी। जो आप देख रहे हैं, जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, वो एक्चुअली में रियलिटी नहीं है, ये रियलिटी है। ईश्वर, सद्गुण, वर्च्यू, नॉलेज, दीज आर द रियलिटीज। अब इसी चीज को, थ्योरी ऑफ आइडियाज को वो एक्सप्लेन करते हैं अपने एक एग्जाम्पल से या अपने एक थ्योरी से, दैट इज नोन एज एलिगोरी ऑफ केव। नो, एलिगोरी ऑफ केव का मतलब ये हो गया कि वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे मान लो एक गुफा है, एक केव है, और उस गुफा में कुछ लोग दीवार के साथ ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे गुफा में हम ऐसे बैठे हैं, और मेरे हाथ पैर सब बंधे हुए हैं, और कई दिन हो गए, अंधेरा एकदम, गुफा में डार्कनेस है, सूरज की रोशनी भी नहीं आती, इतना अंधेरा है, और कई बाहर की दुनिया से मेरा कांटेक्ट, मेरा संपर्क खत्म हो चुका है। फिर एकाएक कहीं से रोशनी आ रही है उस केव के अंदर, और मेरे पीठ के पीछे, मेरे बैक साइड पर कुछ लोग मूव कर रहे हैं, उस पर फोकस पड़ रहा है। देखिए ये लोग मूव कर रहे हैं, दीज पीपुल आर हैंडकफ्ड इन केव, यहां से सनलाइट आ रही है, ये कुछ लोग मूव कर रहे हैं, इसका रिफ्लेक्शन सामने होगा, जो इसका रिफ्लेक्शन सामने होगा वही इन लोगों को दिखेगा, और ये लोग इसी रिफ्लेक्शन को सत्य मान लेंगे, इसी रिफ्लेक्शन को ये लोग सत्य मान लेंगे। क्योंकि बिकॉज कारण है उसका, रीजन है उसका, कि बाहर की दुनिया से इनका संपर्क, इनका कांटेक्ट टूट चुका है, ये बाहर की दुनिया को नहीं जानते, कई सालों से देखा नहीं है, मिले नहीं है, तो इनको लगेगा हाँ यही सत्य है, यही ट्रुथ है, यही रियलिटी है। सो रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज। यही इसी चीज को ये रियलिटी मान लेंगे, क्योंकि इनके दिमाग में यही चल रहा है कि यही सत्य होगा, क्योंकि बाहर क्या है, असली दुनिया क्या है, इन्हें नहीं पता। अब जब ये बाहर जाते हैं, इनको मौका मिलता है बाहर जाने का, अब ये गुफा से जब बाहर जाते हैं, तब ये सत्य के कांटेक्ट में आते हैं, तब इन्हें पता चलता है कि अच्छा सच्चाई तो ये है। इसका सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जिस मटेरियलिस्टिक चीज के पीछे हम लोग भागते हैं जिंदगी भर, पैसा हाय पैसा हाय पैसा, प्लेटो कहते हैं वो सब बेकार है, वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी गॉड है, रियलिटी नॉलेज है, रियलिटी सोल है, रियलिटी आइडियाज हैं, रियलिटी वर्च्यूज हैं, वर्चुअस लाइफ है। आपको वर्चुअस लाइफ के पीछे भागना चाहिए, क्योंकि एथेंस के जो रूलर थे
वो उस फिजिकल चीज को रियलिटी समझते थे। दे वर नॉट ऑनेस्ट, दे वर आफ्टर मनी एंड पावर, पैसा, ताकत। दे वर हाईली करप्ट। इसीलिए एथेंस क्या, क्योंकि स्टेट, क्योंकि एथेंस के रूलिंग अथॉरिटीज करप्ट थे, तो वहां की जनता भी करप्ट हो गई। तब वो एक कोटेशन देते हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे, दैट इज स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। जैसा राज्य, जैसे राज्य के शासक, जनता भी वैसी हो जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा राज्य कोलैप्स कर जाएगा। और इसीलिए एथेंस स्पार्टा से हार गया। अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है, सच्चाई को पहचानो, रियलिटी को पहचानो। और रियलिटी है ईश्वर, रियलिटी है अच्छे गुण। और अगर एथेंस के शासकों में अच्छे गुण होते, रियलिटी होती, तो एथेंस ना हारता। अब आप देखिए, अगर भारत में भी हमारी रूलिंग अथॉरिटी, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे ब्यूरोक्रेट्स अगर ये करप्ट होंगे, करप्शन करेंगे, तो इनकी देखा देखी जनता भी करेगी। तो इसीलिए जो लॉ इंप्लीमेंटर होता है, सबसे पहले कहा जाता है यू शुड फॉलो द लॉ। सबसे पहले आप कानून का जो है पालन करिए। आप खुद ही कानून को तोड़ेंगे तो जनता भी तोड़ेगी, और जनता तोड़ेगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि भारत हमारा कोलैप्स कर जाएगा। तो राज्य को, स्टेट को जो लोग चला रहे हैं, उन्हें ऑनेस्ट होना चाहिए, उन्हें एथिकल होना चाहिए, तब जाकर के स्टेट चलता है या राज्य चलता है। इसीलिए तो हम लोग भारत में करप्शन के अगेंस्ट काम करते हैं ना, कि हाँ एंटी करप्शन लॉज हैं, ईडी है, सीबीआई है, ये सारी चीजें हैं। तो अगर आपको एक अच्छा राज्य चाहिए, एक ऐसा स्टेट चाहिए जहां लोग गुड क्वालिटीज के हों, तो आपको एजुकेशन सिस्टम में वो चेंज करना पड़ेगा। आपको प्राइमरी एजुकेशन से बच्चों में वो इनकलकेट करने पड़ेंगे वो क्वालिटीज, जिससे कि लोग वो क्वालिटीज को अपने अंदर लाएं और तब आगे एक हम मजबूत राज्य बनाएं। यही सारी चीजें एथेंस में क्योंकि नहीं थी, वहां पर सोसाइटी जो थी वो दो पार्ट में बढ़ गई थी, रिच और पुअर। रिच जो थे वो बहुत रिचर हो गए, पुअर जो थे वो पुअरर हो गए। एक दूसरे की आदमी परवाह नहीं करता था। शासक को देखते देखते जनता भी करप्ट हो गई, और फिर फाइनली क्या हुआ? स्टेट कोलैप्स कर गया। एथेंस इतना कमजोर हो गया कि वो स्पार्टा से हार गया। तब प्लेटो कहते हैं स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। और इसको सॉल्व करने के लिए हमें फिलोसोफर रूलर चाहिए, फिलोसोफर किंग चाहिए, क्योंकि एक दार्शनिक शासक ही होगा जिसके पास ट्रू नॉलेज होगी, और वो पैसे और ताकत के पीछे नहीं भागेगा। जैसे कहा जाता है भारत में ना, मोदी और योगी अकेले हैं, क्या ले जाएंगे, क्या करेंगे करप्शन करके, किसके लिए पैसा कमाएंगे। तो आप सत्ता के पीछे नहीं भागेंगे, आप पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, तो आप हमेशा एक अच्छा राज्य चलाने की कोशिश करेंगे। और फिलोसोफर जो होगा वही अल्टीमेट रियलिटी को पहचानेगा। और अल्टीमेट रियलिटी क्या है? अल्टीमेट रियलिटी ये है कि हमें एक वर्चुअस लाइफ जो है वो स्पेंड करनी है, उसको देना है। राजा के लिए अपनी प्रजा का ख्याल रखना, ये एक सद्गुण है। बाकी सब भ्रम है, बाकी सब इल्यूजन है। बोलचाल में भी हम लोग यही सब कहते हैं कि क्या पैसे के पीछे भागते हो। अच्छी क्वालिटीज, इंसान को हमेशा अच्छी क्वालिटीज रखनी चाहिए, पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। पैसा तो मोह माया है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज। तो आई होप आप सबको ये कोटेशन समझ में आया होगा। तो आज मैंने इस पार्ट में आपसे दो कोटेशन डिस्कस किए। वन इज नॉलेज इज वर्च्यू और वर्च्यू इज नॉलेज, एंड सेकेंड इज रियलिटी इज शैडो ऑफ आइडियाज। अब नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में, फिर हम एक कोटेशन आपके साथ डिस्कस करेंगे, दैट इज स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। इसका मतलब क्या है, इसको कैसे लिखेंगे, प्लेटो इससे क्या बताना चाह रहा है, ये सारी चीजें। बट एक चीज बस आप समझ लीजिए कि प्लेटो की पूरी फिलॉसफी में या उनके पूरी बातों में जो क्रक्स है वो ये है कि दरअसल वो एथेंस के हार के कारण ढूंढ रहे हैं, और वो अब ये बता रहे हैं कि अगर एथेंस में एक फिलोसोफर रूलर होता तो एथेंस की हार ना होती। फिलोसोफर रूलर का मतलब एक नॉलेजेबल रूलर, एक ऐसा रूलर जिसके पास ज्ञान होगा। ज्ञान का मतलब अच्छी क्वालिटीज होंगी, वो करप्ट नहीं होगा, वो अच्छा शासन देगा, जनता करप्ट नहीं होगी।
तो एथेंस एक पावरफुल सिटी स्टेट बनेगा। तो चलिए फिर यहीं पर मैं इसको रोकता हूं, फिर नेक्स्ट पार्ट 3 में फिर हम आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। एंड वंस अगेन आई वांट टू रिमाइंड माय अनाउंसमेंट दैट ऑन 18th August देयर इज अ वर्कशॉप फॉर ऑप्शनल, और 20th August 2025 से माय न्यू बैच इज बिगिनिंग, दैट इज PSIR ऑप्शनल। ओके, थैंक यू।